Hello everybody. As you know that we are doing the revision of chapters, and today I want to revise chapter 6, that is tissue. You know that all living organisms are made up of cells. Okay, unicellular organisms perform all the function such as digestion, then respiration, after that reproduction, etc. by a single cell only. For example, you know that amoeba. However, multicellular organisms have several functions which are grouped and means you can say several cells, and several cells are grouped together, and these cells are specialized to carry out the different functions, and you know these cells combined together, these are formed the tissues. Okay, so today I want to explain about the tissues. As you know that these tissues are the cluster of structurally and functionally similar cells, you can say that. Okay, and these are arranged and designed to give up a that you can say that these are designed so as to give the higher possible efficiency of the function, and as well as how they will perform their functions. Got it? So these are the means you can say that these tissues are originate from the same cells, you can say common cells. These are originate from the common cells. Got it? So all the tissues are originate from the common cells. Got it? So you can say that a tissue may be simple or complex type. For example, blood, phloem tissue, muscles, these are the examples of tissues. Okay. Now in reference to the complex plant and animal bodies, then tissues are further classified into the plant tissue and animal tissue. Okay, and this is because the structural and functional origination in the difference of these tissues, means the plant tissue and animal tissue both are originate from the different, they have different functions as well as. Okay, so plants, you know that plants remains stationary, while the animals can move from one place to another. Okay, so these feeding habit, then locomotion, many different adaptations are there that will be totally different from the plants and animals. Got it? So let us explain. Let me explain that plant tissue, actually on the basis of dividing capacity, plant tissue can be classified into two fundamental types. That these types are, you can see that these are these two types of the fundamental classification. These plant tissue are divided into the two types, that is meristematic tissue and permanent tissue. Okay, meristematic tissues, these cells are capable of division. You know that cells are formed by the combination of tissues. Okay, and second one is the permanent tissue, that mature cells are not capable of division. ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल्स है वो डिवाइड कर सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में मैच्योर सेल्स है वो डिवीजन नहीं कर पाएंगे. So here the meristematic tissue, these are divided into the three forms, that is apical tissue, that intercalary, and third one is lateral. Okay, and permanent tissue, these are of two types, maybe one is simple tissue and another is complex tissue. Simple tissue, that tissue which is formed by the single cell, means one cell. Got it? Simple is formed by the one, similar cells will be there, but here complex are formed more than two
tissues will be there. Okay, so it will be complex compound, like compound is formed by the two elements, so two or more elements will be present there. So complex structure is that which contains more than two substances. Okay, so here simple may be parenchyma. Okay, parenchyma tissue. Second, it may be of collenchyma. Three types of the simple tissues are there: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. While if we will talk about the complex tissue, these complex tissue are of two types: xylem and phloem. Okay, and you know these are the conductive tissues. Xylem transport water and mineral to the plants in unidirection, means one direction from roots to the upper part of the plant, while phloem transport food, that will be bidirection. It will be means the food is transport to all parts of the plant, that may be lower side, that may be upper side. Okay. Now, on the basis of dividing capacity, the plant tissue can be classified into two fundamental types. These two fundamental types are meristematic tissue and permanent tissue. Okay, meristematic tissue cells are capable of division, यानी ये divide हो सकते हैं, throughout the life they will divide. Now permanent tissues mature cell are not capable of division, ये division नहीं करेंगे, they are not capable of division. Okay, जो meristematic tissues है, these are also three types. These are classified into three types, that may be apical tissue, intercalary tissue, and you can say that apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Okay, और permanent tissue है, they are further divided into the two forms, or they are classified into two forms: simple tissue, और जो simple tissue है, these are formed by the same type of cells. Okay, so the type of means these are formed by the same type of cells or single type of cells, you can say that. Simple tissue single type of cells से बने होंगे, जबकि जो complex tissue है, they are compound, they are also known as compound tissue. ठीक है, तो compound tissue जो है, they are formed by the more than you can say more than one type of cells. ठीक है, सो कंपाउंड टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है कंपोज्ड होंगे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. इसके बाद जो सिंपल टिश्यूज है, दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. while जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दे आर फर्दर डिवाइड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज xylem and phloem. Xylem tissue and phloem tissue, these are the conduction tissues. कंडक्ट करेंगे, दे विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल. कंडक्शन होगा, जैसे जाइलम जो है, इट विल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. ओके, water and mineral to the upper part of the plant for as in raw material for the photosynthesis, जबकि जो phloem है, it will transport the food. So जो xylem है, ये unidirectional होगा, it will transport the water and mineral towards the upper side, means leaf तक पहुँचाएगा. जबकि phloem है, ये bidirectional होगा, ये नीचे भी फूड पहुँचाएगा, नीचे वाले पार्ट्स में प्लांट के सारे चारों ऊपर डायरेक्शन में या नीचे बाय डायरेक्शनल है, दोनों तरफ ये फूड को पहुंचाएगा. ओके, सो फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, एंड जाइलम करता है वाटर को एंड मिनरल्स को. गॉट इट? नाउ लेट अस डिस्कस द मैरिस्मेटिक टिश्यू. होते क्या है एक्चुअली ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज, होते क्या हैं? ठीक है, सो मैरिस्मेटिक टिश्यूज एक्चुअली डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ. पूरे लाइफ डिवाइड करते हैं. दे विल डिवाइड, और यू कैन से दे विल डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ. ओके, एंड दीज मैरिस्मेटिक टिश्यूज इज फाउंड इन द mainly growing regions. Okay, growing regions of the plant. What are these growing regions? Like roots, shoots, they are found the root tip and shoot tip mainly. Growing regions में root tip and shoot tips पे mainly shoot tips पे they are found. ठीक है, जैसे for example last में tip है, तो they are found in the at the tip, shoot tip पे मिलेंगे. Okay, now these tissues are mainly of three types. कौन कौन से हैं three types?
apical tissue, intercalary tissue and mainly apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. ठीक है, तो 3 टाइप्स के ये मेरिस्टम्स हैं. ओके, सो एपिकल क्या होते हैं? एपिकल आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेमन एंड द रूट्स. ठीक है, ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होंगे स्टेमन एंड रूट्स के में. एंड दीज आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स. लेंथ इंक्रीज करेंगे क्योंकि ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट है तो ग्रो करेंगे और उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे. नाउ सेकेंड जो है इंटरकैलरी टिश्यू. इंटरकैलरी टिश्यूज क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स. ओके, एंड द you can say these are present at the internodes of the twigs. जैसे बेस है, ये लीफ की बेस है यहाँ पर, तो यहाँ कौन से प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेनली यहाँ हेयर, और इंटरनोड्स में इधर ये इंटरनोड है दोनों लीफ के बीच में, तो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो ट्विग्स में ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होंगे और वैसे ये बेस ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होंगे. नाउ थर्ड जो है ये लेटरल मेरिस्टम है. अब लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होगा? On the lateral side of the stem, okay, lateral side of the stem and the roots. So what is the function of it? It helps in the increasing the girth of the stem or root. Girth, पूरा stem और root की girth को बढ़ाएगा. ठीक है, wide हो जाएगा. और now next is permanent tissue. Okay, so permanent tissues क्या होते हैं? Actually permanent tissues is formed from the cells of meristematic tissues when they loses their ability to divide and have attain a permanent shape, then size and function by the process that is called as differentiation. Okay, differentiation होगा और ये जो टिश्यू है मेरिस्मेटिक टिश्यू अब क्या कर देंगे? डिवाइड करना बंद कर देंगे और मैच्योर हो जाएंगे तो डिवाइड करना बंद कर देंगे और परमानेंट जो है अटेन कर लेंगे. परमानेंट साइज है, फंक्शन है, देन शेप है, ये परमानेंट आ जाएगी इनके अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे? अब परमानेंट टिश्यू का फॉर्म ले लेंगे. ठीक है, किसके प्रोसेस से ये चेंज होंगे? डिफरेंशिएशन के. अब ये जो मेनली परमानेंट टिश्यूज हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड टिश्यू. सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है, तो ये टिश्यू है सिंपल और it will form by the 2 or more than 2 types of the cells. ठीक है, नाउ जो सिंपल टिश्यूज हैं फिर से ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं किसके फॉर्म में? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, नाउ व्हाट इज पैरेन्काइमा और व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? वो तो बता चुकी मैं कि क्या होता है परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, एंड परमानेंट टिश्यू एक्चुअली these are formed by the meristematic tissues. बताया मैंने, when they are losing their capability for dividation. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है ये है पैरेन्काइमा. ठीक है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू. ठीक है, इट विल फॉर्म द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू एंड दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट in the cortex and pith of stem and roots and also in the mesophyll of leaves. Okay, so parenchyma P से start हो रहा है, तो these are mainly packaging. Okay, packaging tissues हैं, ये पैकेज करने के लिए काम आएंगे. Now next one is the collenchyma tissue. So collenchyma tissue क्या है? Collenchyma are living elongated and irregularly thickened. इरेगुलरली थिकन्ड है, यानी कहीं से ज़्यादा थिक है तो कहीं से कम है. इरेगुलर थिकनेस है एट द कॉर्नर्स पर. ठीक है, जनरली फाउंड इन द स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस के नीचे ये फाउंड होंगे. एंड दीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट टिश्यू. ठीक है, मेनली ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे ताकि पेड़ जो है, जो भी है फ्लैक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी है, तो इजीली वो खड़ा हो सके, सपोर्टिंग मिले. नाउ नेक्स्ट जो है थर्ड वन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है. जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज है, दीज आर प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स. आपने देखे होंगे नट्स में बाहर जो कवरिंग होती है दैट विल बी वेरी हार्ड. कोकोनट देखा है, इट्स कवरिंग इज वेरी हार्ड. सो दीज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड enable the plant to bear various stresses. ठीक है,
तो ये एक्चुअली सीड्स में, कोकोनट सीड में देखा है हस्क ऑफ कोकोनट, तो उसमें कौन प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नाउ परमानेंट टिश्यू जो है, दीज आर फाउंड इन टू फॉर्म्स, दीज आर डिवाइड इन टू फॉर्म्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. So complex or compound tissue, these are formed by the two or more than two types of the cells. ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स विल बी देयर. सो ये these are further divided into the xylem and phloem. अब जाइलम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, इनको वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं. नाउ जाइलम इज ए वेस्कुलर एंड मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, and it is responding for the transport of food from the roots to the other parts of the plant. Okay, xylem mainly it will conduct water. Okay, water along with the minerals, it will conduct water to the all parts of the plant. Most probably it will transport it to the leaves, because as in leaves क्या करती हैं, they are making food by the process of photosynthesis. तो xylem रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, वाटर एंड मिनरल, एंड वाटर एंड मिनरल के हेल्प से दे विल डू द फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड खाना बन जाएगा फोटोसिंथेसिस के हेल्प से. सो दे विल प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है, इट विल बी फर्दर डिवाइड इनटू दैट जाइलम एंड फ्लोएम. तो फ्लोएम मीन्स फूड ट्रांसपोर्ट होगा. सो you can say that phloem is a vascular tissue and it is responsible for the transport of food from the leaves to other part of the plants. It means देखो plant में two tissues है, xylem and phloem. So xylem transport करेगा water to the upper part of the plant. ठीक है, so upper part means unidirectional, एक ही डायरेक्शन में ये प्लांट वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. गॉट इट. तो जाइलम टिश्यू है ये यूनिडायरेक्शनल है, जबकि जो फ्लोएम है ये बाई डायरेक्शनल है. बी आई मीन्स टू डायरेक्शंस आर देयर. ये ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करता है और नीचे भी ट्रांसपोर्ट करेगा, तो दोनों साइड में ट्रांसपोर्टेशन होगा. जो फूड बन जाएगा लीव्स में, तो लीव्स का फूड जो है वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज एन बाई डायरेक्शनल. डू यू understood? Now I would like to discuss the animal tissue. Okay, and on the basis of functions they perform, animal tissues are classified into four basic types. These four basic types namely epithelial tissue, then connective tissue, then muscular tissue, and last one is nervous tissue. Okay, epithelial tissue, the covering or protective tissue in the animal body, are epithelial tissue. Most probably it is the simplest protective tissue of the animal body, which covers most of the organs and cavities of the bodies. Okay, now it performs a barrier to keep the different body systems separated from each other. Got it? Cells are tightly packed and form a continuous sheet. That is, there is a almost to intercellular space between them. They have very small amount of cementing material between them. Okay, epithelial is separated by underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane that containing collagen, COLLAGEN, that containing collagen mainly. Okay, so on the basis of shape of the cells and their arrangements, actually epithelial tissues are further classified into the different ones, like squamous tissue. Okay, then squamous tissue mainly you know that the skin which protect the body, and it is also made up of squamous epithelium. Okay, and this squamous epithelial further divide into the simple squamous tissue and stratified squamous tissue. Okay, then after that it will be that squamous tissue. first of all epithelial further divide हुआ किसमें, squamous में, cuboidal में, columnar में, ciliated में, glandular में. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो this tissue है epithelial tissue
फर्दर डिवाइड हो रहा है एंड 1 2 3 4 ओके एंड 5 टाइप्स पे। तो ये आप यू कैन जस्ट राइट दैट इट विल बी मतलब एपिथेलियल विल बी फर्दर डिवाइड इनटू यू कैन राइट लाइक दैट ना, ऐसे लिखो। तो 1 then 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 ओके। तो 5 में डिवाइड होगा तो अकॉर्डिंग टू द शेप जो है अलग अलग होगी। स्क्वामस एपिथेलियल है डिवाइडेशन में, सेकेंड जो है वो क्यूबॉइडल है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कॉलुमनार है, फिर सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल है, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियल है। अब ये जो स्क्वामस है स्किन पे प्रेजेंट है, तो स्किन में विच प्रोटेक्ट द बॉडी, यू नो दैट स्किन क्या कर रही है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये फर्दर डिवाइड हो रहा है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल में और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल में। जो सिंपल स्क्वामस है दी सेल्स आर वेरी थिन, ये सेल्स बहुत थिन है एंड दे आर फ्लैट एंड अपीयर एट टाइल्स ओवर ए फ्लोर। जैसे आप देखते हो टाइल्स बिछी हुई है फ्लोर पे, वैसे नजर आते हैं, टाइल्स फ्लोर पे लगी है ऐसे। एंड इट इज अ सिंगल लेयर्ड एंड क्लोजली फिटेड ओके। तो सिंपल स्क्वामस इस टाइप के होंगे। इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स है, alveoli है, वेयर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट occurs थ्रू ए selectively permeable membrane, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कवर्स द esophagus एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ ओके। नाउ सेकेंड जो है स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज हैं, स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज जिनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये सेल्स अरेंज्ड है मैनी लेयर्स में टू प्रिवेंट देयर वियर एंड टीयर ओके। वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करेंगे और बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होंगे। इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ द स्किन एज इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी एंड इज वाटर प्रूफ। नहीं तो पानी अंदर चला जाएगा, स्किन है वो डैमेज हो जाएगी, तो ये वाटर प्रूफ का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड मैंने क्या बताया, सेकेंड टाइप, फर्स्ट तो अपना हो गया स्क्वामस सिंपल, स्क्वामस दो टाइप के हो गए, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। अब दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये मेडअप ऑफ क्यूब सेल्स, मतलब क्यूब शेप सेल से बने हुए हैं ये, विच हैव राउंड न्यूक्लियाई ओके। न्यूक्लियाई है उनका राउंड है, बट उनकी शेप कैसी है, क्यूबॉइडल। तो नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये मेडअप ऑफ क्यूब शेप से बने हुए, क्यूब शेप्ड सेल से बने हुए हैं ओके। देन इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स ओके, वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट फॉर्म्स द जेनिटल एपिथेलियल ऑफ गोनेड्स एंड इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन, ठीक है। ये सीक्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो क्यूबॉइडल टिश्यूज इस तरह से इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब ये कॉलुमिनार एपिथेलियम ये कैसे है, टॉल है एंड पिलर लाइक सेल्स हैं ओके। लॉन्ग है मतलब टॉल है, विद इलोंगेटेड न्यूक्लियाई, इनका न्यूक्लियाई इलोंगेटेड मीन्स और बड़ा हुआ है, छोटा नहीं है, राउंड शेप में नहीं है, इलोंगेटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि इट यूजुअली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, उसमें मिलेंगे ये, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन ना कर, जहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है वो सीक्रेशन कर रहा है, वेयर इट विल बी आकर ओके। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, कॉलुमिनार एपिथेलियल का, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर ओके। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल। व्हेन कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स possess cilia मीन्स यू नो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना इस तरह के, उसको सीलिया बोलते हैं, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो दीज आर द सीलियाज। तो सीलिया जो होंगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, सो सीलिया होंगे इसके अंदर, तो सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल होगा एंड दिस इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल विच कंटेन्स द सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सीलिया हैव द एबिलिटी टू मूव, सीलिया होंगे तो दे कैन मूव
एंड दिस देयर मूवमेंट पुशेस सब्सटेंस फॉरवर्ड लाइक म्यूकस, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नोज में सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सो म्यूकस को वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और अंदर भी सिलियर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. अब इट इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, एंड ऑल्सो इन द लाइन्स ऑफ ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा यहाँ प्रेजेंट है, ताकि ये मूवमेंट को और ज़्यादा मीन्स अंदर साइड में जो भी फ्लूइड है या सब्सटेंस है उसको नीचे ले जा पाएँ, तो सिलिएटेड मूवमेंट होगा. नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ओके, एपिथेलियम होगा लास्ट वाला ग्लैंडुलर, ठीक है, मैंने बताया था ये 5 एपिथेलियम होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5, तो लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. जो ग्लैंड सेल्स हैं ये क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, ओके. एंड समटाइम्स क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू होगा, इट विल बी फोल्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ओके. एंड इट्स जो ये टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर epithelium. Okay, now what are the functions of epithelium tissue? So different types of the functions are there. What are these functions? Epithelium के tissues के functions क्या है? It protects the underlying cells from drying, injury, infections, and also from harmful effects of chemicals. तो harmful effects of chemicals से ये उनको protect कर रहा है. Then it plays a vital role in the regulating of exchange the materials between the body and the external environment between different body parts, okay. After that, it helps in the absorption of water and nutrients and in the diffusion of gases, got it. And it helps in the elimination of water products from the body. So these are the functions of epithelium tissue. Now next tissue is connective tissue. According to the name of this tissue, you can identify the function. Connective means connect the various body organs. Connect कर रहा है ये connective tissue body organs को, ठीक है. So these connective tissues कौन कौन से हैं? ये tissue है, bone है, then tendon है, blood tissue है, areolar है, adipose है, cartilage है. So these are the different types of the connective tissue. ये है ब्लड टिश्यू, ओके, बोन है, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर, कार्टिलेज एंड एडिपोज टिश्यूज. सो ये जो हैं दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज. एक्चुअली दीज आर कनेक्ट्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स. एंड नेक्स्ट टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू, ओके. एंड मस्कुलर टिश्यू आर फर्दर डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, striated muscles, unstriated muscles and cardiac muscles. Actually these muscular tissues hai, these are of elongated cells. Muscular tissues are elongated cells hai, and these elongated cells, and these are responsible for the movement. Actually these are responsible for the movement, got it. Striated muscles hai, mostly these are attached to bones, okay, अटैच्ड होंगी बोन्स के साथ में. एंड क्या करेंगी, स्ट्रेटेड मसल्स है बोन्स के साथ में अटैच्ड होंगी एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेंगी, ओके. एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स है कैन नॉट बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल. पता है आपको, जैसे वी वांट टू जस्ट पल के हम झपकते हैं, ठीक है, झपकना है तो हम उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं, वी कांट डू इट. तो जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते ये अनस्ट्रिएटेड टिश्यूज़ होते हैं, और हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे वो स्ट्रिएटेड टिश्यूज़ होते हैं. तो अनस्ट्रिएटेड टिश्यू हैं कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, वी कांट डू इट. मतलब हमने हाथ हिलाया, सो दैट इज स्ट्रिएटेड टिश्यू काम कर रहा है, हमने हाथ हिलाया, हिल गया. सो वी आर डूइंग लाइक दैट. जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम वो चीज़ कर पा रहे हैं, सो वो स्ट्रिएटेड टिश्यूज़ हैं, और नहीं कर पाएंगे तो वो अनस्ट्रिएटेड टिश्यू है, ठीक है. नाउ थर्ड है कार्डियक मसल्स. ये प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स मेनली हार्ट से रिलेटेड है. सो कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होंगे, एंड जो कार्डियक मसल्स है शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द
लाइफ, ऐसे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेंगे. पंपिंग करता है ना, हर्ट लब डब लब डब लब डब, तो पंपिंग हर्ट होगी और रिलैक्सेशन होगा, एक्सपेंशन होगा और रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा देन एक्सपेंशन होगा. तो इस तरह से रिलैक्सेशन एक्सपेंशन रिलैक्सेशन एक्सपेंशन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपेंड करेगा. तो इस तरह से दोनों काम चलते रहेंगे और वो कार्डियक मसल्स करेगी. ठीक है. और लास्ट अपना है नर्वस टिश्यू. जो नर्वस टिश्यू है, इट enables body to respond to stimuli. This transmits stimuli from one place of our body to the another within the means within the body through the neurons या through the nerves. नर्व के थ्रू हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं. इफ़ समबडी जस्ट पिंच मी, तो आई जस्ट गिविंग आउच आउच और वो पेन होगा, तो जो पेन हुआ तो स्टिमुलाई किया, स्टिमुलाई टू रिस्पॉन्स दिया आपने, स्टिमुलाई हुआ तो आपने रिस्पॉन्स किया. ठीक है. आपने एकदम से लाइट देखी तो आईज क्लोज की, तो दैट टाइप ऑफ जो रेस्पॉन्स है टू द स्टिमुलाई, तो वो क्या हो रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीन्स नर्व्स टिश्यू. नर्व्स टिश्यू हमारा वे ये काम कर रहे हैं. एकदम से सामने गाड़ी आई तो आप पीछे हो गए. ठीक है. सो ये सब चीज़ें काम कौन कर रहा है, नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू एनेबल्स बॉडी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. कोई भी स्टिमुलस होगा तो आप उसका रेस्पॉन्स करोगे. ठीक है. एंड ये जो ट्रांसमिट करेगा, स्टिमुलाई को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन प्लेस ऑफ बॉडी टू अनदर विद इन द बॉडी थ्रू आउट द न्यूरॉन्स. तो ये थ्रू द न्यूरॉन्स ही होगा या नर्व्स करेगी ट्रांसमिट. हम लोगों की बॉडी में हमें कुछ दिखाई दे रहा है तो ये नर्व्स ब्रेन से मिली हुई हैं और नर्व्स हमें दिखाई मीन्स नर्व्स है, दे आर गिविंग द साइट. तो वही हमें दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इजीली. Okay, so with this I have explained the plant tissue, animal tissue, so you can just learn these tissues and functions of these tissues, and these are the different types of the tissues. You can make that this type of diagram easily. After that you can learn the different types of the tissues and their functions. According to their name, their functions will be also related. ठीक है. तो आप लोग इनको लर्न करेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये रिवीजन है, तो रिवीजन इतना हो गया आपका. ठीक है. सो इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, देन यू कैन राइट द क्वेरीज, वी कैन डिस्कस लेटर ऑन. ओके. तो विद दिस, at last I want to say thank you and have a nice day.